Respected sir and dear friends, today my seminar topic is assembly language. Before the starting of assembly language, we want to discuss about some useful things or data which is helpful to understand assembly language easily. Here, computer system work in machine language, and users cannot understood machine language. Hence, users or developer understood human language or assembly language. ठीक है. Then it is required to translate the assembly language into machine language and machine language into assembly language for the interface between computer system and users. Therefore, assembly language can translate into machine language by using assembler, or machine language can be translated into assembly language by using disassembler. ठीक है. अब इसके बाद assembly language स्टार्ट करते हैं. Assembly language. The writing of program in machine language is very difficult and time-taking, boring. It is binary form. Hence, to facilitate program easily understandable language have been developed. Assembly language is one of them. A program can easily write program in alphanumeric symbols instead of meaningful and easily rememberable symbols are chosen for the purpose. We know that computer system work in machine language, and which is very difficult and time taking for human being, and because it is work on the basis of binary numbers, and therefore it is very difficult for rememberable. Hence machine language, assembly language, which is meaningful and easily, and it use symbol, alphanumeric symbol. Therefore, it is very simple for remember and easily. ठीक है. So इसके एग्जाम्पल देखते हैं. For example, add for addition. Here symbol or letter add is used for addition and subtraction. For subtraction, and CMP compare for comparison. Here CMP. ठीक है. And add, subtract and compare, this type of symbol is known as mnemonics. ठीक है. Such symbol are called mnemonics, and the program written in mnemonics is known as assembly language program. ऐसा प्रोग्राम जो mnemonics के जिसमें लिखने में mnemonics को यूज़ करते हैं वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाते हैं. अब ऐसे जो सिम्बॉल्स हैं, लेटर्स हैं, उसको समझना इजी होता है कंपेयर देन बाइनरी नंबर्स. 0 1 1 जो बाइनरी नंबर्स में होते हैं उसको समझने में डिफ़िकल्टी होती है. ठीक. द रिटर्न ऑफ अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ मच इजीलियर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू द रिटर्न ऑफ अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. ठीक है. जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना और समझना बहुत ही कठिन है कंपेयर देन असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में इजी होता है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेयर जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो लॉजिकल होता है. ठीक है. व्हेन द प्रोग्राम रिटर्न इन अ लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज, यहाँ ध्यान देना, कैन नॉट अंडरस्टूड इट. कॉन्सिक्वेंटली द प्रोग्राम रिटर्न इन अदर लैंग्वेज इज translate into machine language before the execution of program, and the translation is done with the help of software. ठीक है. हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेज के अलावा दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है ना. इट कैन नॉट अंडरस्टूड. देयरफॉर यहाँ जो यूजर्स हैं वो मशीन लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझ सकता है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं. देखिए आगे. द प्रोग्राम आर सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन असेंबलर. ठीक है. वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज को
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं असेंबलर। और इसके जस्ट अपोजिट वे प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं उसको बोलते हैं डिसअसेंबलर। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जांपल, ठीक है, एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स प्लेस्ड इन द मेमोरी लोकेशन 2501H। यहाँ 2501H ये एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा स्टोर है जिसका एडिशन करना है। एंड 2502 इज़ गिवन, ठीक है, 2502 जस्ट 2501 के बाद का मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब सम मतलब ये रिजल्ट है, सम मतलब एडिशन करना है तो वो रिजल्ट है। सम रिजल्ट स्टोर इन मेमोरी लोकेशन 2503H। इस मेमोरी लोकेशन पे रिजल्ट को स्टोर करना है। ठीक है, अब देखो उसके लिए क्या करना है, एग्जांपल में देखते हैं। नेमोनिक्स, ठीक है, नेमोनिक्स वो सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल जिसका एक स्पेसिफिक मतलब मीनिंग होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, इसी को असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ नेमोनिक्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम करने में किया जाता है, लिखने में। ठीक, तो इसमें मैं कुछ जानता हूँ, ठीक है, उसको बता रहा हूँ अच्छे से। यहाँ LXI, L मतलब होता है लोड, X मतलब होता है ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है, डाटा, एंड I मतलब इमीडिएटली, लोड डाटा इमीडिएटली। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि डाटा को इमीडिएटली लोड करना है। ठीक, इसमें आता हूँ। मूव मतलब समझते हो, मूव मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, INX इंक्रीमेंट, इन एक्स मतलब डाटा जो भी दिया गया है उसमें इंक्रीमेंट करना है। ये डाटा और एड्रेस दोनों हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद है ऐड को जानते हो, एग्जांपल में एडिशन के लिए होता है। स्टोर, ST स्टोर डाटा एक्यूमुलेटर। ठीक है, स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। ठीक, उसके बाद यहाँ है हाल्ट का क्या मतलब है? हाल्ट मतलब इसका यूज़ प्रोग्राम को स्टॉप करने में करते हैं, इंड के लिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल को समझते हैं क्या हो रहा है इसमें, जो वर्किंग हो रहा है उसको। ठीक है, यहाँ निमोनिक्स है और यहाँ उसके ऑपरेंड्स हैं और यहाँ बताया गया है ऑपरेशन में क्या परफॉर्म हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है परफॉर्म उसको। ठीक है, अब देखो लोड डाटा इमीडिएटली, डाटा को इमीडिएटली लोड करना है। और यहाँ पे दिया है H, इसमें जो इसको रिटर्न करते हैं, लिखते हैं प्रोग्राम को, तो ऐसा लिखा जाता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होना है रिजल्ट उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद कॉमा दी जाती है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसको दिया जाता है। ठीक है, इसको और समझ में आ जाएगा बाद में। इसमें लोड डाटा को इमीडिएटली लोड करना है 2501 इस एड्रेस पे जो डाटा है उसको H मतलब ये है LH पेयर और मेमोरी भी बोलते हैं ना। ठीक है, ये मेमोरी निकालाता है। तो 2501H में जो डाटा है उसको मेमोरी में लोड कर देते हैं इसके थ्रू। तो ये कमांड चलाए और उसके बाद डाटा 2501 की डाटा इसमें लोड हो गई। गेट द डाटा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इन, ये मेमोरी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसमें क्या करें, मूव चला है ना। मूव का मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। मूव ए मतलब एक्यूमुलेटर है, कॉमा है, M है मेमोरी। ठीक है, अब वो डाटा जो मेमोरी में स्टोर हुआ था अब उसको मूव करना है एक्यूमुलेटर में। ठीक है, यहाँ एक्यूमुलेटर ये स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर है जिसमें अर्थमेटिक, लॉजिक और मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, इसी रजिस्टर में होता है। ठीक, और जो अधिकांश रिजल्टेंट भी होता है इसी में होता है। ठीक, तो मूव करना है मेमोरी में जो डाटा है 501 के डाटा उसको अब एक्यूमुलेटर में मूव कर लिए। गेट फर्स्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट X। ठीक है, यहाँ अब देखो मेमोरी 2501 एड्रेस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट X किया है मतलब वो एड्रेस में इंक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट X में इस कमांड से अब ये यहाँ पे हो जाएगा एक 2502 मेमोरी लोकेशन का जो डाटा है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट इन द कंटेंट्स ऑफ LH पेयर, तो इसमें जो डाटा है उस पर अब एक्शन परफॉर्म होगा। एड M। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि जो एम है, एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है 2501 की, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट करके उस डाटा को 2502 के डाटा को, दूसरा जो डाटा है उसको एक्सेस कर लिए हैं। उसके बाद उसमें ऐड ऑपरेशन कर रहे हैं एम, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और मेमोरी के में जो डाटा है दोनों में, उस डाटा के बीच एडिशन एक्शन परफॉर्म करता है, एड द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है। अब उसके बाद रिजल्ट मिल गया होगा, ठीक है, स्टोर एक्यूमुलेटर। अब जो रिजल्ट मिला है उसको 2503 एड्रेस पर स्टोर करना है, ठीक है। अब ये हो गया अपना एक्यूमुलेटर में स्टोर, यहाँ भी दिया है एक्यूमुलेटर, ठीक है। स्टोर सम इन 2503 मेमोरी लोकेशन जो एक्यूमुलेटर का है उसमें स्टोर हो गया। अब प्रोग्राम के जो हमारे काम है हो गए। तो अब उसके बाद हाल्ट कमांड देके प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट है इसका गेट 05 इन रजिस्टर ए, ये 05 डाटा है, एड्रेस नहीं है, ठीक है। देन मूव इट टू रजिस्टर बी, पहले 05 डाटा को रजिस्टर ए में लेना है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है रजिस्टर बी में, ठीक। अब इसके लिए क्या कमांड देना है उसको देखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। यहाँ दिया है मेमोरी एड्रेस और मशीन कोड नेमोनिक्स ऑपरेंड्स, ठीक है। ये एक्शन है कमेंट्स, ठीक। अब ये AFC00 ये जो रिक्वायर्ड डाटा है 05 जो कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करते हैं तो वो डेटा मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो 05 जैसे स्टोर हो गया रहा होगा तो ये इस एड्रेस पे है, ठीक है। उसी प्रकार ये बाकी के एड्रेस है, मेमोरी के एड्रेस है जहाँ पे मतलब डेटा स्टोर होना है, ठीक। अब ये मशीन कोड, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्रोसेसिंग मशीन कोड में होता है, मशीन बाइनरी लैंग्वेज में होता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में होता है। तो निमोनिक्स है वो असेंबली लैंग्वेज का है, इसको यूजर्स और डेवलपर समझ सकते हैं, इसका लॉजिकल मीनिंग होता है उसको समझते हैं। तो इसको इस डाटा को असेंबलर जो भी है डिस असेंबलर के थ्रू उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेसिंग जो होती है वो इसी लैंग्वेज में होती है। उसके बाद रिजल्ट मिलता है वो मशीन लैंग्वेज में ही मिलता है, उसको फिर असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। MVI, ठीक है, मूव इमीडिएटली मूव करना है। तो इसके लिए इसका मशीन कोड है 3E05, ये नया टर्म है उस एग्जाम्पल के बाद, ठीक। तो मूव इमीडिएटली के लिए मशीन कोड 3E होता है। तो इसमें मूव इमीडिएटली ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है देखना, ठीक। यहाँ पे जो डाटा है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 05 जो डाटा है, ठीक है। इस एड्रेस का 05 जो डाटा है उसको इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में मूव कर लिया जाता है, गेट 05 इन रजिस्टर ए, ठीक है। अब उसके बाद मूव, इस मूव के लिए ये वाला मूव अलग है, ये वाला मूव अलग है ना। इस मूव के लिए जो मशीन कोड है 47, ठीक। अब इसमें देखना, यहाँ जिसमें डाटा को मूव करना है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद जहाँ से डाटा एक्सेस करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो A, B, ठीक है। इसको कमांड को ऐसे लिखते हैं, मूव स्पेस A, B, असेंबली लैंग्वेज के जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें। फिर उसके बाद कहते हैं ट्रांसलेट 05 फ्रॉम रजिस्टर A to H, ठीक है। अब ये रजिस्टर B मेमोरी का भाग है यहाँ ना, ठीक है। तो डाटा रजिस्टर B में मूव हो जाता है। अब यहाँ इतना ही बोला गया है, मूव करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोग्राम को हाल्ट कर दिया जाता है, हाल्ट कमांड के साथ जो ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, यदि इसमें तो समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल जिसमें बहुत सारे जो निमोनिक्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, उसका इस्तेमाल हुआ रहेगा, नहीं समझ में आया होगा तो बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।